Hello children. So this is assignment 4 for chapter 15, that is improvement in food resources. थोड़ा सा यहाँ पे spelling mistake है, आप उसको देख लीजिएगा. Okay, it's PROVE. Now it's fine. So the first question over here is of MCQ type. So the aim of plant breeding is to produce option A, disease-free varieties, B, high-yielding varieties, C, early maturing varieties, and D, all of the above. So we have already discussed this in class that the aim should be, the correct answer by the way is D, that is all of the above. See, जो भी हमारा crop plant है, it should be disease-free obviously, because we are going to consume it ना, तो disease free तो definitely होना ही चाहिए. Then it should be high yielding variety. अगर high yielding नहीं होगा तो economic perspective पे वो that is not good. Early maturing होना चाहिए. As I have told you, जितनी देर तक वो field में रहेगा उतनी ज़्यादा investment cost बढ़ती चली जाएगी. So correct answer is D. Next question is, इसको हम फटाफट करेंगे children, ठीक है, time नहीं waste करना है. Okay, next question is the element which is required in the large quantity by the plant is, and your options are A, nitrogen, B, calcium, C, phosphorus and D, sulfur. पूछा ये गया है कि कौन सा एलिमेंट है जो बहुत लार्जेस्ट क्वांटिटी में आपका प्लांट रिक्वायर करता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नाइट्रोजन. और आपको पता है नाइट्रोजन इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन द लेग्यूमिनस प्लांट. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी आपने लास्ट ईयर प्रोसेसेस पढ़े हैं. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाइल डिस्कसिंग द चैप्टर अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो. नेक्स्ट, विच ऑफ द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज सप्लाइड बाय सॉइल. सॉइल से कौन सा एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हमें देखने को मिलता है. ऑप्शंस आर ए, हाइड्रोजन, बी, कार्बन, सी, फॉस्फोरस एंड डी, oxygen, and the correct answer is C, that is your phosphorus. So phosphorus is basically the plant nutrient that is supplied by the soil. अगर चिल्ड्रन यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो हम नाइट्रोजन को भी टिक कर सकते थे. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है. मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको पता है जो that nutrient that is utilized in a large quantity. Options are A, potassium, B, calcium, C, nitrogen and D, manganese. So the correct answer is option D, that is manganese. So manganese is not a macronutrient, ठीक है, it's a micronutrient. बाकी आपके potassium, calcium, nitrogen, all these are macronutrient required in a large quantity by the crop plants. Okay, ठीक है. Next question is, answer the following question. What is plant breeding? So the correct answer for this is see, again I am warning you, it's just a sample piece. You are not supposed to copy the same. You can add some points, ठीक है, according to your own wish, which you find most relevant. तो आप उसको incorporate कर सकते हो. There is no hard and fast rule in this. So what is plant breeding? So plant breeding is the purposeful manipulation of qualities in the plant to create new varieties with a set of desired characteristics. Plant breeding में हम purposeful manipulation करते हैं. So this is the keyword in this point, ठीक है, so that we can get a set of desired characteristics which we are expecting in the progeny. Plants with higher qualities are selected by and crossed to obtain plants with the desired quality. This results in a plant population with improved and desired traits. So इसको हमने broadly classify कर दिया under plant breeding. ठीक है चिल्ड्रन, मैं आपको यहाँ पे समझा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में कवर करके रखी है. सो दिस इज जस्ट टू शो हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द आंसर. ठीक है, कैसे आप एक फॉर्मेट है, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. इसको और अच्छे से और क्रिएटिविटी के साथ आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि इसमें और क्या क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो. दिस इज जस्ट वन वे टू रिप्रेजेंट व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग. और भी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, मैनिपुलेशंस इज लाइक सेट ऑफ टेक्निक्स टू इम्प्रूव द क्रॉप, आप कुछ भी उसमें यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन. सो यस, hybridization is refers to the crossing between genetically dissimilar plant. ठीक है, so genetically dissimilar plant is the keyword over here. This crossing may be intervarietal. Intervarietal का मतलब होता है between the different varieties.
ठीक है, या इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। मैंने आपको पहले ही बताया था एक जीनस के अंदर डिफरेंट लाइक ढेर सारी स्पीशीज आती हैं, ठीक है। और इंटरजेनेरिक भी हो सकता है। इंटरजेनेरिक का मतलब है बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जीनस को भी हम क्रॉस कभी कभी करते हैं। तो उस टाइप के क्रॉस को जहां पे हम जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को क्रॉस करेंगे, फ्यूज करवाएंगे, वी कुड कॉल इट एज हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट ब्रीडिंग के इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, उसमें हाइब्रिडाइजेशन, जीन मैनिपुलेशन, ठीक है, ऑल दीज आर दी टेक्निक्स विच वी आर यूजिंग। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो सकता है दैट मैन्योर इज द ऑर्गेनिक मैटर, ऑब्वियसली वी नो दिस, मोस्टली डिराइव फ्रॉम द एनिमल वेस्ट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ग्रीन मैन्योर, जो एक प्लांट बेस्ड ओरिजिन है, which can be used as organic fertilizers in agriculture. Manures contribute to the fertility of the soil by adding organic matter and nutrients just like nitrogen, ठीक है, that are trapped by the bacteria in the सॉइल। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैन्योर्स आपको पहले भी पता है कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करते हैं। एक ओवरऑल जो स्टेट है सॉइल का, एक ओवरऑल जो हेल्थ है सॉइल की, एक ओवरऑल जो फर्टिलिटी है, उसको इंश्योर करते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, इनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है एज वी कंपेयर इट विद दी फर्टिलाइजर्स। तो इनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एनिमल मैन्योर हो सकता है, कॉम्पोस्ट हो सकता है, वर्मी कॉम्पोस्ट हो सकता है, ग्रीन मैन्योरिंग हमने आपको पढ़ाया था, एंड फार्म यार्ड मैन्योर हो सकता है। सो दीज आर द टाइप्स जो क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैन्योर का भी इंट्रोडक्शन दिया है और फिर मैंने आपके टाइप्स को यहाँ पे लिखा है। आप चाहो तो टाइप्स को फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हो, मगर आपको क्वेश्चन आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सिर्फ नेम पूछा था, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए शायद नहीं लिखा था यहाँ पे, तो सिर्फ आपको नेम देना है, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फार्म यार्ड मैन्योर? So it is a decomposed mixture of the cattle excreta, that is dung, cow dung भी हो सकता है, cattle excreta most common is the cow dung, and urine along with a litter and left over organic matter such as roughage or fodder. फॉडर, रफेज सब आपको पता है क्या होता है। द वेस्ट मटीरियल आर कलेक्टेड डेली फ्रॉम द कैटल शेड एंड स्टोर्ड इन अ पिट। पिट का मतलब एक गड्ढा कह सकते हो, एक कैविटी कह सकते हो ग्राउंड में, या फिर एक एडिशनल कैविटी जो हम क्रिएट करते हैं फॉर डिकॉम्पोजिशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकॉम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है, कि अगर कार्ब्स है तो मोनोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स में ब्रेक कर जाएगा, प्रोटीन्स है तो अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर जाएंगे, ऑल ऑफ दिस स्टफ दैट इज नोन एज डिकॉम्पोजिशन बाय हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक योर बैक्टीरिया एंड फंजाई। Last question is define organic farming. So organic farming is a method of farming using less or no amount of fertilizers, herbicides, pesticides etc. Organic farming में हम chemical fertilizers को ना के बराबर या बहुत ही कम यूज करते हैं ताकि उसका कोई भी हजार्डस इम्पैक्ट हमें देखने को ना मिले। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस रिड्यूसेस द पोल्यूशन इन द एयर, वाटर एंड द सॉइल। मैंने आपको ये पहले भी बताया था क्लास में भी दैट दीज प्रैक्टिसेस आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आजकल हमारा पूरा फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वी आर वेरी मच कंसर्न विद द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फूड में भी, कॉस्मेटिक्स में भी, डे टू डे यूज के नेसेसिटीज में भी वी आर पुटिंग आवर कंसर्न टू द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, ठीक है। Okay, it also helps to conserve water, reduce soil erosion. Soil erosion क्या होता है? I have already explained you. And uses less energy. These products takes into consideration not just production but environmental sustainability as well. तो यहाँ पे मैंने एक लाइन डाला है कि ये सिर्फ आपके प्रोडक्शन को ही इंश्योर नहीं करते हैं, उसकी क्वालिटी को ही इंश्योर नहीं करते हैं, मगर ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी मैनेज करते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं these sort of practices. So children, this is assignment number 4 जिसके आपको काफी डाउट्स थे इसमें, तो ये उसका एक जर्नल मॉडल आंसर टाइप का आप कह सकते हो। अगेन एमसीक्यूज के आंसर्स तो फिक्स हैं ऑब्वियसली, बट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। यू कैन, इफ यू वांट टू ऐड सर्टेन मोर पॉइंट्स यू कैन डेफिनेटली, और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, और जैसे भी आप इसको क्रिएटिविटी के साथ रिप्रेजेंट करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली कॉपी करना इज नॉट अ सोल्यूशन। So that's all for this assignment number 4. See you in the next video. Thank you.